Hello, dear students. I welcome you all in today's lecture. Today, we are going to study the last equipments from the chapter drying. So, first of all, we will start with the vacuum dryer. In vacuum dryer, it is based on the principle that in this dryer, the vacuum is supplied or the vacuum is applied. So, this vacuum will lead in drying of that particular material. Okay, so in vacuum dryer material is dried by the application of vacuum, means here the reduction in the moisture content of that particular material is due to the application of your vacuum. Okay, so here when vacuum is created, the pressure is lowered so that the water boils below water boils at the lower temperature. Okay, means here the water which is applied to the whole system will result in lowering the pressure. Okay, so यहाँ पे वैक्यूम ड्रायर, द नेम itself indicates that वैक्यूम ड्रायर में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम होता है और उस वैक्यूम के वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ड्राइंग होता है. कैसे? बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द वैक्यूम which is applied will create the lowering in the pressure, so due to which the water boils but at low temperature, means here the energy which is utilized for drying is also lowered. Okay, so as the water boils at lower temperature, then the water rate of evaporation will be faster, so the water will evaporate soon or much faster. Okay, so the heat transfer become efficient and thus the rate of drying enhances substantially. Okay, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल पे आपका वैक्यूम ड्रायर बेस्ड है कि वैक्यूम ड्रायर में आप क्या कर रहे हो, पहले तो वैक्यूम अप्लाई कर रहे हो और उस वैक्यूम की वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रेशर लोअर हो रहा है. सो प्रेशर लोअर होने के बाद क्या होगा, आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो गया कि जैसा आपका प्रेशर लो हो रहा है, आपके कम टेम्परेचर पे आपका वाटर बॉईल करेगा. ठीक है, सो एज सून एज योर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग द इवोपरेशन प्रोसीजर विल टेक्स प्लेस. ओके, एंड इफ the evaporation procedure takes place means where the moisture content into that particular material will be reduced and the rate of drying will enhanced. Okay, so this is the principle of your vacuum dryer. Okay, so next is the construction. So it is made up of cast of heavy jacketed vessel. Okay, means your vacuum dryer consists of a heavy jacketed vessel. Okay, so this is made up from iron and this is for the application of heat in the form of steam or water jacket. Okay, so this is the outer portion is nothing but the cast made up of, that is water jacket or steam jacket, which is made up of the cast heavy iron. Okay, the enclosed space is divided into a number of portions by means of 20 hollow shelves which are part of jacket. Okay, so here there are the 20 number of shells, so which are placed into this hollow jacket. Okay, so this shelves is used for the insertion of your material. यहाँ पे आप ट्रे अपलोड कर सकते हो आपका मटेरियल फिल करके. सो द नंबर ऑफ शेल्व्स प्रेजेंट इन दिस हेवी जैकेट आयरन जैकेट इज 20. Okay, so these shelves provided large area for conduction of heat, because अब यहाँ पे हीट कैसे कंडक्ट होगा, फ्रॉम दिस आउटर जैकेट टूवर्ड्स द इनर portion without mixing, means which phenomenon or which mechanism is used here, that is conduction. Okay, other over the shelves the metal trays are placed for keeping the material. मतलब ये आपका जो शेल्फ है, जो 20 हॉलो शेल्फ प्रेजेंट है, वो 20 हॉलो शेल्फ्स किस चीज़ के लिए बने हैं, आपके मटेरियल को फीड करने के लिए. जिस मटेरियल को आपको ड्राई करना है वो मटेरियल के लिए आपके ये शेल्फ बने हैं. ओके, द ओवन डोर कैन बी लॉक टाइटली टू गिव एन एयर टाइट सील. Okay, then after that oven is connected to the vacuum pump by placing the condenser in between. Okay, so this oven, यहाँ पे इसका डोर आप लॉक कर सकते हो. this oven is connected to the condenser and that condenser is connected to the vacuum pump and condensate receiver. जो भी आपके कंडेंसेट बनेंगे उसका रिसीवर एक रहेगा वहाँ पे. ठीक है, so this is how the construction of vacuum dryer इज. ओके, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है आपका वैक्यूम ड्रायर का. क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, ये तो या तो जैकेटेड वेसल प्रेजेंट है विच इज यूज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ स्टीम और
water in hot water into the whole system. Then it consists of 12 hollow shelves. So these shelves are used for the insertion or for keeping the material in case of trays. ठीक है, trays में भी आप रख सकते हो. Okay, so the door is there which gives the प्रॉपर क्लोजिंग टू योर इक्विपमेंट. ओके, आपका एक डोर प्रेजेंट रहेगा जिसकी वजह से आपका क्लोजर मिलेगा आपके इक्विपमेंट को. ओके, सो दिस बॉडी इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर एंड वन कंडेंसेट रिसीवर इज ऑल्सो देयर. ओके, so this is the construction of your vacuum dryer. Then working is very simple. That is, material to be dried is spread on the trays. ओके, तो जो आप ये शेल में जो ट्रेज रखोगे उस ट्रे पे मटेरियल आपका पहले पूरा स्प्रेड कर देना है. ओके, ट्रेज आर प्लेस्ड ऑन द शेल्फ्स. देन pressure is decreased up to 30 to 60 kilopascal by means of vacuum pump, and that's after that the door is closed. Okay, steam or hot air is supplied into the hollow space of jackets and shelves, and heat transfer by conduction takes place. Means here the mechanism through which the heat is transferred is nothing but your conduction, that is without mixing. Okay, at this vacuum, evaporation of water from the material takes place at 25 to 30 degrees Celsius. Means why? Because the vacuum will create the reduction in the pressure, and thus water will boil at a low temperature, that is nothing but the 25 to 30 degree Celsius. Okay, on account of lowering of boiling point, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस करके उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर पे आपका मटेरियल क्या बॉईल करना शुरू कर देगा, तो जिसके वजह से आपका टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे यहाँ पे वो बॉईल हो रहा है, दैट इज 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पे इवापोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट विल स्टार्ट एट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस. सो वाटर वेपर पासेस इनटू द कंडेंसर वेयर द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड दैट कंडेंसेट आर कलेक्टेड. ठीक है, आपका इवापोरेशन होने के बाद आपके मटेरियल में से मॉइस्चर पूरा चला जाएगा. मटेरियल में से मॉइस्चर जाने के बाद आपके कंडेंसेट आपका कंडेंसर में कंडेंस होगा, और उसके बाद कंडेंसेट रिसीवर में आपके कंडेंसेट को कलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे ट्रे में आपका कौन प्रेजेंट रहेगा, ड्राइड मटेरियल विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेज. ओके, देन एडवांटेजेस, लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर इज देयर. देन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ट्रेज, इक्विपमेंट इज easy here. Okay, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया फॉर हीट ट्रांसफर, क्योंकि 20 नंबर ऑफ हॉलो शेल्फ्स आर प्रेजेंट, मीन्स लार्ज सरफेस एरिया इज देयर फॉर ड्राइंग. ओके, और फॉर हीट ट्रांसफर. देन हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ट्रेज एंड इक्विपमेंट इज ईजी. देन ईजी टू स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट मटेरियल, क्योंकि सीधा सीधा क्या करना है आपको, ट्रेज बाहर निकाल के मटेरियल को कलेक्ट करना है और फिर से लोड करना है वो पर्टिकुलर ट्रे को. ओके, देन हॉट वाटर ऑफ डिजायर्ड टेम्परेचर कैन बी सप्लाइड, क्योंकि वो बाहर आउटर सरफेस में ही आपको सप्लाई करना है, तो डिजायर्ड टेम्परेचर का आप हॉट वाटर सिस्टम में सप्लाई कर सकते हो. ओके, देन इलेक्ट्रिकली हीटेड हॉलो शेल्फ कैन बी यूज्ड. ऐसा हॉलो शेल्फ जो इलेक्ट्रिकली हीटेड है, मतलब उसको सेपरेट से आपको स्टीम या हॉट वाटर उस शेल्फ को मतलब सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, then disadvantages, that is heat transfer coefficient are low, means rate of heat transfer is low, limited capacity and used for batch processes, more expensive, क्योंकि जो 20 ट्रेज है आपको वही ऐड करने पड़ेगी 20 शेल्फ्स में, उसका नंबर ऑफ शेल्फ्स आप बढ़ा नहीं सकते हो. ओके, सो दैट्स वाई लिमिटेड कैपेसिटी एंड यूज्ड फॉर द बैच process, more expensive than the tray dryer. Then here the labor and running cost is also high. There is a danger of overheating as the material is in contact with the steam heated surface for the longer period. So that's why here there is a chance of overheating in this case. Okay, then uses, the heat sensitive materials which undergo the decomposition. Okay, means here this is not suitable for the thermolabile substances. Okay, then it is not applicable in case, sorry here we are studying in uses, sorry. Then uses means for it is suitable for the heat sensitive material which undergoes the decomposition. ऐसे मटेरियल थर्मोलेबाइल मटेरियल को भी आप ड्राई कर सकते हो. इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग द डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. देन ड्रग्स कंटेनिंग द टॉक्सिक सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका क्लोज्ड कंटेनर है ना, ये पूरा सिस्टम क्या है आपका, उसका आप
डोर क्लोज करके कर सकते हो, मतलब क्या कि कोई लीचिंग होगा आपके, अगर टॉक्सिक मटेरियल का कोई होगा लीचिंग, या उसका कोई फ्यूम्स निकल रहे हो टॉक्सिक एयर में, एनवायरमेंट में, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि आपका डोर लॉक्ड होगा ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे. सो ड्रग्स कंटेनिंग द टॉक्सिक सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी ड्राइड बाय यूजिंग दिस vacuum dryer. Okay, feed containing valuable solvent, so this can be recovered by the condensation, क्योंकि आपका पूरा कंडेंसेट आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो. सो इफ द वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स आर देयर, जो कि मॉइस्चर आप बाहर निकाल रहे हो वो सिस्टम में से, अगर वो मॉइस्चर इसेंशियल है, वैल्यूएबल है, सो दैट मॉइस्चर कैन ऑल्सो बी रिकलेक्टेड बाय कंडेंसेशन. ओके, देन ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड एज अ पोरस एंड प्रोडक्ट, ऐसे ड्रग्स जिसके हमें एंड प्रोडक्ट्स पोरस में चाहिए, दैट ड्रग प्रोडक्ट्स कैन बी ड्राइड बाय यूजिंग दिस वैक्यूम ड्रायर. ओके, फ्राइबल ड्रग एक्सट्रैक्ट्स, सो ऐसा ड्रग एक्सट्रैक्ट जिसका वेट बाद में फ्राइबिलिटी की वजह से लॉस हो सकता है, दैट ऑल्सो कैन बी ड्राइड इन केस ऑफ दिस वैक्यूम ड्रायर. सो दीज आर द यूजेस ऑफ योर वैक्यूम ड्रायर. सो वी हैव स्टडीड द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, advantages, disadvantages and uses of your vacuum dryer. So this is all about the vacuum dryer.